बिजनेस एंड लेजर ट्रैवल और MIC पर भारत के अग्रणी कारोबार मेले की शुरुआत शनिवार को राजधानी में हुई। पूर्वी दिल्ली के लीला एम्बियंस होटल में 2 दिवसीय टूर एंड ट्रैवल के दिग्गज बिजनेस लेजर और MIC सेगमेंट का आयोजन BLTM ने किया, जो कई वर्षों से ऐसे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजनों में सफल रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में, जिसमें 4 देशों, 13 से अधिक भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। 275 से अधिक होस्टेड बायर्स शो में मौजूद रहेंगे, जिन्हें खास तौर पर देश भर से बिजनेस एवं लेजर और MIC ट्रैवल सेगमेंट से चुना गया है। उम्मीद है 1500 से अधिक ट्रेड बायर्स भी शो में आएंगे। शो के दौरान कुछ अनूठे पर्यटन स्थलों जैसे सेंट पीटर्सबर्ग, सिंगापुर, मॉस्को और भारतीय पर्यटन, कुछ भारतीय राज्यों, होटलों, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटरों, DMC आदि को दर्शाया जाएगा। शो का उद्घाटन सुश्री कुजेना कायाजू शो का उद्घाटन कुजेन काया जूलिया, डिप्टी चेयरमैन कमेटी फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, रेमंड लिम, एरिया डायरेक्टर इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप, सिंगापुर, अरुण श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर जनरल पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार। इस अवसर पर शो के प्रतिभागी एवं गैर प्रतिभागी देशों जैसे श्रीलंका, क्यूबा, ग्रीस, वियतनाम आदि के कौंसुल एवं एम्बेसडर, भारतीय राज्यों के वरिष्ठ पर्यटन अधिकारी, विभिन्न यात्रा कारोबार संगठनों के प्रमुख एवं उद्योग जगत के अन्य गण्यमान्य दिग्गज भी मौजूद थे। दिल्ली से DailyNewsOnline.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखी। Has its roots from India because a lot of immigrants came from India and they helped build Singapore for the last century. So that itself gave us a very strong cultural, historical relationship, and we are each country's biggest investor. Right? India is now number 2, second biggest tourism market for Singapore. Pre-COVID, we had about 1.4 million. We are unlikely to hit 1.4 million, but we are there. We should be able to recover at least 50% of our visit arrivals from India by the end of 2022. Let me touch a little bit on MICE. I just also like to compare it to, currently now, what you see in Delhi is that the weddings are coming back, right? It's a time for weddings, right? Weddings means big show, big tentages, what you call big audience, and that's what MICE is all about. It's a very complex thing. MICE is complex because you're dealing with scale. Leisure is complex, but you are dealing more with. They are looking for a good experience from leisure point of view. That's why we think it's a good idea to combine business and leisure, and even for MICE and events. Whenever the groups are traveling, for example, especially for incentives, they are looking for a good leisurely experience as well. So that's the idea of this BLTM, and this is a only of its kind in India. It's a large format show with pavilions and booth from all over India and also from abroad, and in that respect it is the only of its kind. There may be other generic very large format exhibitions like our own TTF and OTM, which we have in a few days from now, but when it comes to quality of buyers and sellers, features like the hosted buyers scheduling appointments and the reverse mixing where the buyers sit in a room like this and the sellers come here and do the appointment to meet them in their booth.
all these aspects and the setting in this 5-star hotel within Delhi makes it a unique show of its kind, especially in Delhi. Friends, we are aware of the setbacks due to the pandemic, and it was, the recent events in the world, the economic recession. All this has been a kind of a challenge for travel and tourism industry, but there is a kind of resilience, especially in this Indian market, where the tourists are willing to go wherever they can go. So if the visa processing is faster, they would go to that destination. If the international travel is closed, they will travel with. Being here and supporting the cause of the tourism industry here. This is Jyoti is there, and my friend from Russia, my old friend Raymond from my Singapore days, and of course who does not know Mr. Subhash, who is the doyen of Indian travel industry, and I think we all are lucky that he is here today, and we would be very, very happy to listen to his sage words. Once again, thank you very much, and of course I wish all the exhibitors and the trade buyer, visitors, media friends, a very successful BLTM 2022. Thank you very much. 2 million is my target. Oh, okay, 2 minutes of target. Thank you very much, BLTM, for having us at this show, Fairfest, and we were definitely this is one of the best shows, at least for the MICE fraternity. And we were at Mumbai for OTM just earlier this year. So yes, we are all back in business after 2.5 years. All I can say is гости, коллеги, друзья от имени Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Я очень рада сегодня вас здесь приветствовать. Dear colleagues, participants of the exhibitions, dear guests, on behalf of the Convention and Exhibition Bureau and St. Petersburg Committee of Tourism Development, I'm glad to welcome you here. Я хотела бы поблагодарить отдельно господина Санджива Агарвала за предоставленную возможность быть партнером данного мероприятия и иметь возможность выступить сегодня. And I'd like to thank Mr. Sanjeev Agarwal for being partners of this event. Также я хотела бы поблагодарить всех коллег за участие и BLTM के बारे में आप बताइए, 2 दिन का कन्वेंशन है और यहाँ टूरिज़्म का स्कोप किस तरीके से है यहाँ पर? भारत में देखा जाए तो विदेश से जो लोग आने जाने का क्या है? नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल, मैं फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड जो कि इस BLTM प्रदर्शनी के आयोजक हैं उसका चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इस प्रदर्शनी में हमारा उद्देश्य ये है कि कोविड के काल में जो एक टूरिज़्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी मार पड़ी, इससे निकल के वापस हम एक अच्छे हेल्थ की तरफ अग्रसर कर सकें। ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री को, पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है, दुनिया भर में करीब 10% लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट पाते हैं और ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये लगभग ठप सा हो गया था और अभी हमें ये बहुत खुशी हो रही है कि ये वापस एक करीब 90% से 100% की तरफ जाने की उम्मीद है इसी फाइनेंशियल ईयर में 2022 और 2023 में। और इसमें बहुत सा उथल पुथल है, बहुत सी जगह अभी लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं दूसरी जगह वो अब नए डेस्टिनेशन को चूज़ कर रहे हैं और वो जो फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं वो भारत के अंदर ही घूम रहे हैं, लेकिन जो विदेश से भारत नहीं आ पा रहे हैं अभी उतने नंबर में, तो ऐसा करके एक आपस का एक इंडस्ट्री में संतुलन एक किसी तरह से बन रहा है। और ये भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो यहाँ के देशीय अंतर्देशीय पर्यटन है, इन्होंने रियलाइज़ किया कि भारतीय के पास भी काफ़ी परचेजिंग पावर है, काफ़ी अच्छा उनको स्पेंडिंग पावर है, तो वो जब अगर फॉरेन नहीं जा पाए तो उन्होंने बहुत महंगे कमरे भी अपने उसकी कीमत झुका के लिया और उनको एक तरह से टूरिज़्म इंडस्ट्री को जिंदा रखा। और जो
अब वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत वीज़ा में डिले है। बहुत सी जो वेस्टर्न कंट्री जैसे यूरोप और अमेरिका में काफ़ी डिले है, तो अभी एक नए नए डेस्टिनेशन आ रहे हैं और उसमें हमारे साथ ये रशिया पहली बार इतने बड़े रूप में यहाँ दिल्ली में और मुंबई में काफ़ी प्रमोशन कर रहे हैं और बहुत से भारतीय अब रशिया जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आने वाले टाइम में अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि ये एक दिक्कत है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में वीज़ा की प्रॉब्लम है और रशिया ने अपना ये फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है, तो काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और वो वहाँ से रशियन यहाँ भी आ सकते हैं। तो ये हमारा एडवाइस रहेगा जो पर्यटन इनबाउंड का जो हमारी पर्यटन विभाग देखते हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री है, कि वो रशिया में काफ़ी प्रमोशन करें, तो इससे हमें काफ़ी लाभ होगा। यहाँ लगभग 150 पार्टिसिपेंट्स हैं और ये बहुत फोकस्ड एग्जीबिशन है जो कि सिर्फ B2B जो कॉरपोरेट जैसे कंपनियां बहुत सा ट्रैवल खरीदती हैं, वो अपने बिजनेस ट्रैवल के लिए या इंसेंटिव तरीके से ट्रैवलिंग पिछले 2 सालों से रहा और अब किस तरीके से ट्रैवलिंग टूरिज़्म और जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है इस टाइम, तो कैसा लग रहा है इस पूरे फोकस को देखें? देखिए, सबसे पहले तो 2.5-3 साल तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, तो जैसे जेल से बंदा बंद हो और जेल से छूटता है, तो इस तरीके से जो भी आदमी अफोर्ड कर सकता है वो ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए कश्मीर भी एकदम कितना भरा पड़ा है। और दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को वीज़ा मिले। अब जैसे कि मैंने कहा कि वीज़ा नहीं मिल रहे, यूरोप के किसी भी कंट्री के 4-4, 6-6 महीने की वेटिंग है, अमेरिका कनाडा की भी वेटिंग है, तो ये एक सुनहरी मौका है कि इंडियंस को रशिया जाने के लिए। पर रशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसमें वीज़ा में टाइम लगता है। तो अगर रशिया वीज़ा कर दे, और अभी एरोफ्लोट की कुछ फ़्लाइटें हैं, डायरेक्ट एयर इंडिया की भी 2 या 3 फ़्लाइटें हैं, पर अगर रोज़ की फ़्लाइटें हो जाएँ और ओपन स्काई कर दे रशिया और इंडिया के बीच में, तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम कहा कि अगर ये ओपन स्काई कर दे रशिया के साथ और रूबल और रुपीज़ की डायरेक्ट पेमेंट हो जाए और फ़्लाइटें शुरू हो जाएं और वीज़ा हो जाए, तो जैसे थाईलैंड में 1.5 मिलियन है, 1.4 मिलियन सिंगापुर, मैं समझता हूँ 1 मिलियन तो कम से कम इंडिया और रशिया के बीच में लोग ट्रैवल कर सकते हैं। रशिया में होटल्स भी अच्छे हैं, खाना पीना भी अच्छा है, शॉपिंग भी अच्छी है और नाइट लाइफ भी अच्छी है जो लोग इंडियंस चाहते हैं। तो वहाँ कल्चरल डांसेस वगैरह बहुत कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट अगर रखते हैं तो 2 साल के अंदर 1 मिलियन कन्वेंशन पीरियड सेशन विल स्टार्ट इन जस्ट द नेक्स्ट few years। क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियली क्राइसिस भी चल रहा है, तो कहीं फर्क पड़ेगा। क्राइसिस यूरोप में है, यूरोप में लोग कम जा रहे हैं, वीज़ा भी नहीं मिल रहे, तो ये एक सुनहरी मौका है इंडिया और रशिया को, और रशिया से भी इंडिया में लोग आ सकते हैं अगर फ्लाइटें जाना हो। तो ये एक इंडो रशिया जो कोऑपरेशन है, और रशिया उसने हमारा साथ दिया है हिस्टोरिकली भी और हमेशा वॉर में भी, तो हमें रशिया के साथ देना चाहिए और रशिया प्रमोट करना चाहिए। स्ट्रेंथ है और ये है भी और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अपनी कंट्री है। तभी मैंने डायस पे भी यही बोला कि हमको सिर्फ एक ही तरफ की बात नहीं करनी है कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग खुद की अपनी रेवेन्यू लूज कर रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं लोग आ रहे। एंड दैट इज़ व्हाट वी रियली नीड टू बिल्ड ऑन, वी रियली नीड टू बिल्ड ऑन दोज थिंग्स। एंड टूरिज्म का फोकस है मिनिस्ट्री का एक लिमिट तक होता है, हमको एज प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आगे चल के इनके साथ मिल के काम करना है कि हमारी बिजनेस है, हमारा ब्रेड एंड बटर है, हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। हम मिनिस्ट्री के साथ मिल के लेके जा सकते हैं एंड मिनिस्ट्री शुड बी देयर टू मेक पॉलिसीज, दे शुड बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड दे शुड बी हेल्पिंग अस टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए। बेशक आप हमें उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालिए, बेशक आप जो मर्जी करिए, पर हमको स्टेटस चाहिए। हमारा एक्सपोर्ट का पैसा सबसे ज़्यादा आ रहा है, हमारी GDP हमारे वजह से है, एम्प्लॉयमेंट हमारी वजह से है, तो हमको भी वही स्ट्रक्चर मिलना चाहिए सो दैट वी बिल्ड टू अ वेरी ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री। BLTM का 2 दिन का कन्वेंशन चल रहा है, इसमें मेन फोकस क्या है? इनका मेन फोकस तो ये है कि इनको बिजनेस और कॉन्फ्रेंसिंग पे ज़्यादा करना है, और लेजर तो आता ही है। मैंने जैसे बोला कि कोई ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ बिजनेस के लिए आता है और घूमता नहीं
बिजनेस, तभी तो एक वर्ड बन गया ब्लेजर बन गया। ब्लेजर का मतलब ही यही है कि बिजनेस भी कर रहे हैं, लेजर भी कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस तो हमारी स्ट्रेंथ है। इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री और हमारे अब इतने सारे एवेन्यूज़ बन रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंसिंग तो राइस पे ही है। और ऐसे जो हमारे एग्जीबिशंस होती हैं, इनमें हमें और पता चलता है कि हमारा क्या कनेक्ट है, B2B हमारा क्या स्ट्रॉन्ग है, कंट्रीज़ आ रही है, हमको उसके साथ कैसे काम करना है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण आई है आफ्टर कोविड इज़ हमें अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे जो हमारे वर्किंग पार्टनर्स हैं, हमको उनके साथ फिर से जुड़ना है, क्योंकि सब कुछ रह गया 3 साल में। हम 2 साल तो स्ट्रगल करते रहे, तीसरे साल में हम कोशिश कर रहे थे आने की, और पर अब हमको लगना है कि हमें स्टेक होल्डर्स के साथ टाई अप करना है। और वो जो ऐसे शोज़ होते हैं, OTM हो जाए, BLTM हो जाए, TTF हो गए, ये हमारी स्ट्रेंथ को आगे लाते हैं, हम कनेक्ट करते हैं और फिर से बिजनेस करने की हम गुजारिश करते हैं। मैम, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या पॉलिसीज़ होंगी जो अपनाई जाएंगी अभी? देखिए, हम लोग बहुत पॉलिसीज़ बना रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी बन रही है। अब हमको टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं कि हमें टास्क फोर्स बहुत ज़रूरी चाहिए, और हमें कैबिनेट सेक्रेटरीज़ के अंडर चाहिए या प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ के नीचे चाहिए। बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपनी स्पीच में हमेशा बोलते हैं कि ये 4 T's हैं जो मेरी स्ट्रेंथ है, और टेक्नोलॉजी और ट्रैवल का हमेशा उसमें आता है जिक्र। तो हम कहते हैं कि ये उनके अंडर होना चाहिए, क्योंकि विजन जो एक आदमी और या जो व्यक्ति आता है इस चेयर पे, जो हमारी पूरी कंट्री को गवर्न कर रहा है, उसकी छत्र छाया में ये बढ़नी चाहिए, और ये बढ़ेगी, क्योंकि अभी हमारा फोकस है। और इंडिया आप देखेंगे बहुत जल्दी लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनेगी और बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि हर लोग को एक अपने के लोगों को अपने टूरिज्म में करना चाहिए, हर परिवार को 2 परिवार को इधर तो घूमना चाहिए। 5 लोग कह रहे थे कि हर आदमी को, और जितने NRI और डायस्पोरा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है बाहर, तो उनको उन्होंने बोला कि आप 5 लोग सोचिए कि विदाउट इंडियन जो हमारी कंट्री में आए, और उससे हमारा बहुत बढ़ेगा। तो भी हम मिलजुल के काम कर रहे हैं और बहुत बढ़ने की ख्वाहिश है।